Good morning everyone. Today we will start new chapter number 2, History of Computer. Learning objective, History of Computer and Generation of Computer. First is History of Computer. This after MT developed a symbols for the number 10 of simplify the representation of large number. The need of calculation large digit rapidly brought the evolutions of computer. First is abacus. In 300 BC, the Chinese developed a device called abacus having wooden frame and beads. It was probably the first calculating device, therefore it was called abacus. First calculating device बनाई गई थी, उसका नाम था abacus. वो जो चाइना में डेवलप किया गया था और पूरे वुडन फ्रेम, मतलब वुडन फ्रेम पर उससे पूरा बनाया गया था. उस वुडन फ्रेम थे और उसमें छोटे छोटे बीट्स थे. उसके थ्रू क्या होता था, कैलकुलेशन की जाती थी. नेपियर बोन. इन 1642 Scottish mathematicians and physician John Napier realized that multiplications and division of number could be performed by addition and subtraction via a special integrated called the logarithms of this number. जॉन नेपियर बोन ने क्या किया था, एडवांस कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई थी जिसके थ्रू के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी इजीली किया जा सकता था एंड डिवीजन आल्सो. नेक्स्ट इज पास्कल लाइन. इन 1642 Blaise Pascal at age 19 invented the Pascal line, a drive-one function calculator to help his father, who was a tax calculator, to perform the operations of addition. This one could only perform addition, also provide very expensive and incorrected. Pascal line was also called the Edison machine. Pascal line in 1642 में क्या बेलिस पास्कल ने अपने 19 की एज में एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया था. उसमें क्या करते थे हम, उसमें इजीली एडिशन सब्सट्रैक्शन उसे हम कर सकते थे. और ये क्या पास्कल ने जो डिवाइस बनाई थी वो काफी एक्सपेंसिव थी. Different engine. Around 1822, Charles Babbage, a British mathematician, developed a computing machine called the different engine. It was steam drive and could compute a table of numbers such a logarithms table. Charles Babbage, the first of the man, जिसने क्या किया था, कंप्यूटर मशीन को इन्वर्टेड किया था, मतलब बनाया था. ओके, चार्ल्स बाबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज एनालिटिकल इंजन. द नेक्स्ट मशीन हैज डेवलप वाज द एनालिटिकल इंजन. चार्ल्स बाबेज के बाद जो नेक्स्ट मशीन की थी उसको एनालिटिकल इंजन नाम दिया गया था. इट वाज अ डिवाइस अ लार्ज हैज अ हावर्स अप्रोच 30 मीटर्स लॉन्ग एंड 10 मीटर्स वाइड. मतलब जो कंप्यूटर बनाया गया था वो क्या था, अप्रोच 30 मीटर लॉन्ग था एंड 30 मीटर वाइड मतलब चौड़ाई में 10 मीटर चौड़ाई थी एंड 30 मीटर लॉन्ग था. ओके, इट वाज पावर्ड बाय 6 स्ट्रीम. और वो बहुत काफी पावरफुल था. 6 स्ट्रीम के कंपेयर था. उस कंपेरिजन के अंदर was more general purpose in nature because it could be probable. Generations of computer. The development of computer from 1940 onward has been divided into 5 generations based on storage technology used. कंप्यूटर को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है और ये 1940 में स्टार्ट किया गया था. अब फर्स्ट जनरेशन 1940 to 1955.
The basic components of the first generation of computer was vacuum tube. जो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर बनाया गया था उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था. अ वैक्यूम ट्यूब इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट permitted the processing of digital signal at a faster speed. The most popular computer of this generation was the ENIAC. The full form of ENIAC is Electronic Numerical Integrated and Computer. At the first generation of computer were Hank occupied a room size, produced a lot of heart. They were extremely slow and given frequently problem. जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर बनाए गए थे वो काफ़ी साइज में बड़े थे, जो पूरे एक रूम को ऑक्यूपाइड मतलब पूरे एक रूम को कवर करता था. इतने बड़े कंप्यूटर बनाए गए थे. ठीक है. और कंप्यूटर की स्पीड बहुत काफ़ी स्लो थी, उसकी फ्रिक्वेंसी भी काफ़ी स्लो थी, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती थी. देन सेकेंड इज नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन इन 1955 to 1963. The second generation of computer used a solid state device called transmitter in the place of vacuum tube. अब सेकेंड जनरेशन में क्या किया, वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर को यूज किया गया. ओके. फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब. सेकेंड जनरेशन में क्या था, ट्रांजिस्टर वर वेरी कॉन्वेंट वेर कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब. ट्रांजिस्टर क्या था, वैक्यूम ट्यूब के कंपेयर में काफी क्या था, मतलब कंफर्टेबल था. दे वर मोर इफिशियंट एंड चीपर देन द वैक्यूम ट्यूब. और वो काफी इफेक्टिव मतलब मोर इफिशियंस था, वैक्यूम ट्यूब के काफी चीपर था. मतलब वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में इसकी ट्रांजिस्टर की क्या थी, प्राइस चीप थी, मतलब कम थी. दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर started from the year 1955 and continued up to year 1963. ये 1955 to 1963 तक ये इस वैक्यूम मतलब सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर का यूज किया गया. द मेजर डेवलपमेंट दैट स्टार्टेड द सेकेंड जनरेशन वाज द inventions of the transistor. Computer of second generation use transistor is CPU and magnetic core programming like COBOL and Fortran. जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर जो बनाया गया था वो दो लैंग्वेज को सपोर्ट करता था. फर्स्ट इज COBOL एंड सेकंड इज Fortran. थर्ड जनरेशन 1964 to 1970. These generations of computer appeared in the year 1964 and continued up to 1970 through transistor were an important over the vacuum tube. They still generate heat which damage the computer sensitive internal part. To solve this problem, integrated circuit IC was invented by Jack Kilby. थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में विथ कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन, इसमें क्या था, काफ़ी साइज में कंप्यूटर्स काफ़ी साइज में स्मॉल हुआ करते थे एंड कॉस्ट भी फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के कंपैरिजन में लो हुआ करती थी. थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था. ओके. फोर्थ जनरेशन 1970 and now. This computer appeared in year 1970 and still being used. This development of microcomputer and the PC took place during the present era. PCs are made by big companies like Dell, Compaq, AST, IBM and Apple realized न्यू मॉडल ऑफ कंप्यूटर. फोर्थ जनरेशन में क्या था, कंप्यूटर की साइज काफ़ी स्मॉल हो गई थी,
लाइक और इसे फोर्थ जनरेशन के बड़े बड़े कंपनी ने क्या किया था, इसे बनाया था। लाइक डेल, कॉम्पैक्ट, IBM, एप्पल, ये सब कंपनी ने क्या किया था, स्मॉल कंप्यूटर का डेवलप कर दिया था। द कंप्यूटर ऑफ फोर्थ जनरेशन यूज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI circuits. VLSI circuits having about 500 transistor and other circuit elements on a single chip. With the help VLSI technology, Intel made first microprocessor. फोर्थ जनरेशन में क्या किया था, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया था। माइक्रो प्रोसेसर की यूज करके क्या होता है, उसकी स्पीड, साइज सब में क्या हुआ था, काफी चेंजेस हुआ था विथ द कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। ओके, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज किया गया था। ओके, लास्ट इज फिफ्थ जनरेशन। इन दिस जनरेशन रिसर्च on developing thinking computer. This technology use referred as artificial intelligences. These computer are called the fifth generation computer. फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके फिफ्थ जनरेशन को डेवलप किया गया था। ओके, विद द कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इसमें क्या होता, साइज में, स्पीड में, एक्यूरेंसी में, सब में क्या होता, इंप्रूवमेंट होता गया। अब आपको इन सब में सब क्या याद रखना है, ओनली फॉर इनकी जनरेशन, मतलब कब इसे डेवलप किया गया था और इसे किस किस एज में इसका कौन कौन सी का यूज किया गया था। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब IC का यूज किया गया था, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था, एंड फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज किया गया था। ओके, आई होप you understand all this point. Okay, thank you.